So today we will start this chapter, which is the last chapter in your syllabus. So what is respiration? I will not go through the slide because I've made notes. Okay. What is respiration? The first and foremost things in this chapter. Respiration and breathing are two completely different processes, and breathing is a part of respiration, and respiration is much bigger process that involves many things. Okay. Mainly respiration helps in the movement, in the absorption, and it helps in breathing, also sometimes in reproduction, lower organisms. Okay. So respiration means the organisms who are having the ability to respire, to create energy and to utilize that energy, that is called as respiration. Okay. And respiration is very important for the survival, because how will we do our work if energy is not provided by the body? So for the production of energy and for utilization of that energy, respiration process is very important. Okay. So सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसके लिए भी क्या है, रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड, what is this respiration? The ability of organism to respire. Okay. Then helps organism to survive. Why it helps? Because every organism needs energy to perform some or the other things, and for that energy we need respiration. Okay. Then provides energy for absorption also, movement also, transportation, reproduction, and breathing, etc. Means there are many processes for which this respiration is required, for the breathing of each and every tissues, for the absorption, for the movement, for the transportation of substances. Each and everything require the process of respiration. Okay. Now what is cellular respiration? Means respiration is a whole bigger term. Now cellular respiration is what? The respiration which is occurring inside the cell. And what does basically happens in the cell? ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंसेस को, जिससे हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करके एटीपी सिंथेसाइज करते हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. Okay. So first and foremost thing is cellular respiration means requirement of need of this energy release. Okay. Whenever cellular respiration occurs, it occurs just to take out the energy. जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से एनर्जी जितना रहेगा उसको लेंगे, देन ट्रैप करके उस एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस में लगाएंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके. देन रेस्पिरेशन क्या है? एम्फीबोलिक प्रोसेस. एम्फीबोलिक मीन्स इट इज इन्वॉल्विंग कैटाबोलिक प्रोसेस, एट द सेम टाइम इट इन्वॉल्व्स एनाबोलिक प्रोसेस. कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ प्रोसेस बनता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स टूटता है. सो इट इन्वॉल्व्स बोथ, बनना भी एंड टूटना भी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक प्रोसेस. अगेन इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स, मेनी स्टेप प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व. लाइक ब्रीदिंग भी है इसी में, फिर ब्रीदिंग के बाद उसका सेलुलर ब्रेक डाउन भी होगा, देन ब्रेक डाउन के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा, देन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे. ईच एंड एवरी स्टेप is important in this respiration process. That is why it is not a single step process. Then it involves complete oxidation of food. Whatever food any living organism is taking, whether it is plant or animal, so उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, उसके कंप्लीट यूटिलाइजेशन यानी कि उसको यूटिलाइज करके उससे एनर्जी पूरी तरह से लेना, ये किसका काम है? रेस्पिरेशन का. देन एनर्जी रिलीज हो रहा है. इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज. एनर्जी जब रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक प्रोसेस. एक्सर्गोनिक प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी अंदर से बाहर की तरफ रिलीज होती है. इंडरगोनिक में क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ एनर्जी दिया जाता है. व्हेनेवर वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ लाइक नीडिंग द डो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? बाहर से अंदर की तरफ एनर्जी देते हैं ताकि वो डो बन के तैयार हो. लेकिन यहाँ पे क्या है? एनर्जी अंदर के प्रोसेस से बाहर की तरफ आ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस. ओके. देन एटीपी फॉर्मेशन को हम लोग, ये मैंने बता चुका है कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है. The formation of ATP using inorganic phosphate, that is known as what? Inorganic phosphate. This one is inorganic phosphate. Inorganic phosphate का यूज करके अगर हम लोग ATP बना रहे हैं, then that process will be called as phosphorylation. And phosphorylation are of three different kinds. One is photophosphorylation, which is occurring in the presence of sunlight, and it occurs in the photosynthetic cells. Then substrate level phosphorylation, again I have explained this one, but यहाँ पे जरूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? बिना किसी
एक्टिविटी की है या इनडायरेक्ट एक्टिविटी को छोड़ के डायरेक्टली अगर एटीपी बन रहा है किसी भी सेल में या किसी भी सेल के पार्ट में, तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SLP. Okay, then oxidative phosphorylation, indirect formation of ATP, जैसे कि NADP या FADP या MNP, ये सारे का इस्तेमाल करेंगे. GDP, अगर इन सारे का इस्तेमाल करके हम लोग ATP बना रहे हैं, then that process will be called as oxidative phosphorylation. Okay, so 3 different kind of phosphorylation occurs. मतलब 3 तरह से ATP को बनाया जा सकता है. एक तो लाइट का यूज करके, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मेशन करो ADP से ATP में, और तीसरा यूजिंग NADPH2 या FADH2 या FMN का यूज करके या GTB यूज करके, तो किसी भी यूज करके हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा सकते हैं. उनसे भी ATP बनता है, लेकिन नॉट एज मच एज विथ SLP एंड फॉस्फोराइलेशन photo 1. Okay, so this much you understood about what is respiration, what are the basic points of it? Yes, ma'am. Okay, so quickly we will see the difference between breathing and respiration, because it can ask in your exam. Okay, breathing, it is mechanical process in which fresh air is sent to the lungs, and while, just give me a minute, yes, fresh air is sent to the lungs while removing carbon dioxide from the body by muscular movement. Breathing में क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो ये रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर प्रोसेस है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज जैसे को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे केमिकल एनर्जी रिलीज करते हैं इन फॉर्म ऑफ ATP. ठीक, देन ये फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है. प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ ATP. यहाँ पे कुछ प्रोविजन नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में. Can be observed in animal and some of the arthropods, can be observed in all the living organism on earth, because respiration is done by the prokaryotes also and the eukaryotes also. Prokaryote means amoeba, bacteria, and every living organism that is present on the earth, they will show the process of respiration. Okay, then breathing occurs by diffusion, it occurs by oxidation यानी कि ब्रेक डाउन. ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस है. occurs through inhalation followed by exhalation. देन ये ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय क्रेब्स साइकिल. ये ATP को यूज करता है, ये ATP को जनरेट करता है. मेजर डिफरेंस, regulated by diaphragm, ये regulated by numerous enzymes. So these are all the difference. This difference I think we have seen in the respiration chapter also, but वो रेस्पिरेशन और ये रेस्पिरेशन, ये प्लांट का रेस्पिरेशन है, वो एनिमल का रेस्पिरेशन था. बट ब्रीदिंग इज द सेम. ब्रीदिंग विल ऑलवेज कम अंडर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, देन वी विल कम टू दिस एक्सचेंज of gases or reason for the absence of respiratory organs in plants. अब देखो, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट है एनिमल्स में, बट व्हाई डू प्लांट डोंट हैव दिस? क्योंकि प्लांट का क्या है, वी हैव ऑल द थिंग्स कवर्ड. हम लोग सिर्फ 2 ही जगह से सांस ले सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल टच हमारा कहाँ से है, इन्वायरमेंटल आउटसाइड टच या तो नोज से है या तो सिर्फ माउथ से. बट द प्लांट हैव एवरीथिंग ओपन in their leaves, in their root, in their flowers. वो सब क्या है, उनका खुला ही है. लीव्स में जो सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उसमें स्पेसेस क्रिएट होते हैं. वो स्पेसेस क्या करते हैं, आराम से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है वहां से. फिर इतने स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, तो वो स्टोमेटा भी क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं. प्लस ट्रीज और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके बार्क्स में देखो लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, बार्क प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज आराम से हो सकता है. तो उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, या जगह जगह पे उनके डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है वहां पे. तो उनको ज्यादा डिमांड नहीं होती कि हाँ वो पूरे ऑक्सीजन का डिमांड बहुत हाई है. ठीक, प्लस दे आर नॉट वेरी हाई इन डिस्टेंस वाइड, उनका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है. प्लस उनका मूवमेंट भी नहीं है उतना. प्लांट डोंट मूव, दे शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट बट दे डोंट शो द लोकोमोशन. तो वो अपने पोजीशन पे ही रह के मूवमेंट शो कर रहे हैं, उसके लिए कितना ही एनर्जी चाहिए होगा या कितना ही ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगा. तो ये सारे रीजन है. कोई ज्यादा डिमांड नहीं है उनके पास. सारे जो प्रोसेस हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स, हर का क्या है, ओपन स्पेसेस हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं या टिश्यूज कह लो. देन ओपन स्पेसेस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है. ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स में वेल डेवलप्ड नहीं है. ओके, या वेल डेवलप क्या है, एब्सेंस ही है. सो यहाँ पे भी देखते क्या क्या है, नो ग्रेट डिमांड, सेम वे. देन
रेस्पिरेशन अकर्स एट स्लो रेट, रूट स्टेम एंड लीव्स, इसमें क्या होता है, बहुत स्लोली रेस्पिरेशन होता है, एंड लूज पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, यानी कि एयर स्पेस प्रेजेंट होता है. वी हैव सीन इन द पेरेन्काइमा टिश्यू चैप्टर, वी हैव सीन कि पेरेन्काइमेटस भी कई तरह के होते हैं, तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू में कई में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक. देन डिस्टेंस नॉट वेरी फार, दैट इज डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इजिली. ये सारे रीजंस की वजह से क्या है, प्लांट्स में रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं है. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या है, 3 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, दिस वी नो. अब नाउ यू विल टेल मी कि व्हाट इज प्रिफर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द ब्रेकडाउन. प्लांट्स और एनिमल्स में कौन प्रिफरेबल है कि ये ब्रेकडाउन करे. पहले तो ये बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन. विच विल गिव मोस्ट एनर्जी after the breakdown? Carbohydrate. Yeah, that's the most confusing question. Carbohydrates नहीं देता, fats देता है. Fat, it will give most energy. It gives most energy. अब most energy अगर इससे मिलता है, लोग fat क्यों नहीं कंज्यूम करते? Why they consume more carbohydrate? या कभी कभी बीमारी पे भी ग्लूकोज का मतलब ग्लूकॉन डी देते हैं या ग्लूकोज देते हैं या चीनी खिलाते हैं. Why? Fats एनर्जी तो बहुत ज्यादा देता है, नो डाउट, लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है ना, ब्रेक डाउन में इसका बहुत लंबा प्रोसेस है. तो जो इजी प्रोसेस होता है ज्यादातर लोग वो फॉलो करते हैं. तो सेम वे इन द प्लांट्स एंड इन द एनिमल्स ऑल्सो, फैट्स ज्यादा एनर्जी देने के बावजूद दे प्रेफर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन. वाई? बिकॉज इट इज सिंपल टू ब्रेक डाउन, इट इज एन ईजी प्रोसेस फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके. एंड फैट्स का ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल से होता है, बड़ी मेहनत से होता है और लंबा प्रोसेस होता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम animal and plant tissues prefer carbohydrate breakdown, and that is why it is important carbohydrate intake for human and animal or plant body. Okay, understood? Carbohydrate energy तो देता है, लेकिन सबसे ज्यादा फैट देता है, less energy compared to fats. Understood or not? Yes, ma'am. Okay. Most preferred by the tissues and cells for breakdown. Tissues and cells for breakdown. Okay. अब इन तीनों का ही क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ब्रेकडाउन होगा तो इसी के बेसिस पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी निकला है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर बीइंग यूज्ड. फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, जब उस रेस्पिरेशन में प्रोटीन एज अ फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ठीक है. इफ एनी टाइम डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड, देन यू कैन राइट, देन fats and carbohydrate are used in form of respiratory substance, then it will be called as floating respiration. And when respiratory substrate are protein, then it will be called as protoplasmic respiration. Okay. Same way on the basis of presence or absence of oxygen, ये मैंने कितनी बार बताया भी है, aerobic respiration और anaerobic respiration. Oxygen required, oxygen not required. Okay. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. इसमें क्या होगा, एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, इट इज प्रिफर्ड, इट विल गिव मोर एनर्जी, इट इज मोर एफिशिएंट. और ये एरोबिक वाली में क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी कम प्रोवाइड करेगा, एफिशिएंसी कम देगा. एंड इट इज डन बाय सम लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर काइंड ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. ह्यूमन बॉडी कैन शो एरोबिक एंड एनारोबिक डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड सिचुएशन. ज्यादातर के 90% एरोबिक शो करते हैं, बट एनारोबिक भी होता है. सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये फुल फॉर्म है, whatever you are going to study in this whole glycolysis, Krebs cycle and ETS system. तो ये सारे का फुल फॉर्म है, which ultimately you have to remember. NAD, NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. इसका जब भी जितना भी चीज मैं लिखूंगी शॉर्ट टाइम से फिर लॉन्गर फॉर्म है, उसका रिडक्शन ही होगा. NAD, FAD या FMN, सबका रिडक्शन होगा और वो हाइड्रोजन में ऐड हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा रिडक्शन के बाद. ओके. NADH क्या है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ NAD, यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया. अब इसको क्या बोलेंगे, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन. ओके. यहाँ पर तो NAD का ही सिर्फ इतना फॉर्म था. फुल फॉर्म कैन बी आस्क्ड एनीवेयर एनी टाइम इन एनी एंट्रेंस एग्जाम. ओके. देन NADP क्या है, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. फिर NADPH क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन ही होगा. ठीक है. यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका रिड्यूस फॉर्म. FAD, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका भी रिडक्शन क्या करेगा, रिड्यूस फॉर्म ऑफ FAD. रिडक्शन में वही चीज हाइड्रोजनेज ऐड हो जाएगा. FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड,
FMNH2 reduced form of FMN. Okay, reduced form of FMN. अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, चाहे वो FAD हो, चाहे वो NAD हो, चाहे FMN हो, चाहे NADP हो, किसी का भी अगर तुम रिडक्शन करोगी तो वहां पे H ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और अगेन इन चारों में से किसी का भी तुम ऑक्सीडेशन करोगी, यानी कि एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करने पे क्या होगा, ये चारों चीज वापस से बनेंगे। तो फुल फॉर्म यू नीड टू रिमेम्बर, बिकॉज अगला स्लाइड जो है ये इसी पे बेस्ड है कि कहाँ NADP आ रहा है, कहाँ NAD आ रहा है, कहाँ ADP बन रहा है, एवरीथिंग विल बी बेस्ड हियर। ओके, एनी डाउट till here? Type of respiration is completed. Now main topic which we have to study, glycolysis. Glycolysis, Krebs cycle and ETS. These three are the main heart of this chapter. Okay, now glycolysis is, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइको एंड लाइसिस। देखो, ग्लाइको एंड लाइसिस, लाइसिस ब्रेक डाउन एंड ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ये वर्ड कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से। टू ग्रीक वर्ड्स, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। किसका ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग, ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग हो रहा है। इसमें क्या होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली पाथवे दैट इज अकरिंग इन बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों में ही काम करता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी है। ये साइट यानी कि कहाँ काम करता है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। व्हाटएवर आई हैव रिटन, ऑल द 10 पॉइंट्स और 12 पॉइंट्स, सब पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो ये पूरा तुम्हें याद होना चाहिए या समझ में आना चाहिए एवरीथिंग। इसका नेम EMP पाथवे भी इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्क्राइब, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय इनवेडेन, मेयरहोफ एंड पर्नस। Three scientists have described the process of glycolysis, therefore it is also called as EMP pathway. ठीक, only step in anaerobic respiration. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और एनारोबिक रेस्पिरेशन में चलता है। आफ्टर दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन में अलग से इनडायरेक्ट वे में बिना ऑक्सीजन का यूज किए एनर्जी बनाया जाता है या ATP फॉर्मेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस दोनों में चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। वहां तक तो इसका ये सेम कॉमन पाथवे है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही चलता है। इन प्रोडक्ट क्या है, चाहे वो सुक्रोज से बना हो, चाहे वो स्टार्च से बना हो। स्टार्च भी क्या देगा, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज ही देता है। सुक्रोज भी क्या होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है। सुक्रोज का ब्रेक डाउन में फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च से तो हमको डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है। दोनों ही क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर सकते हैं। चाहे फ्रक्टोज डायरेक्ट इंटर करिए, एक स्टेप कम हो जाएगा तब, और चाहे ग्लूकोज करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज ही इंटर कर जाते हैं क्योंकि वो छोटा मॉलिक्यूल है, मतलब लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टार्च से या सुक्रोज, दोनों में से ही अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो स्टार्च अगर सिर्फ ग्लूकोज बना रहा है तभी वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर सकता है। सुक्रोज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों को बना रहा है और दोनों ही ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर सकते हैं। फ्रक्टोज जब इंटर करेगा तो एक स्टेप कम हो जाएगा। ओके, नाउ ग्लूकोज इज 10 स्टेप पाथवे। कितना स्टेप पाथवे है, 10 स्टेप। इट इज 10 स्टेप पाथवे, ठीक, डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ फेजेस। प्रिपरेटरी फेज में ये क्या करता है ना, पहले देखो रेस्पिरेशन का काम क्या है, ATP को बनाना, लेकिन प्रिपरेटरी फेज में यहाँ क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये ATP को यूज करेगा। प्रिपरेटरी फेज में वी विल सी दैट इट विल यूज सम ATP, 2 या 3 ATP को यूज करता है। तो वो किस लिए करता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पे ऑफ फेज। ओके, द केमिकल रिएक्शंस अकर जस्ट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में जाके वो लोग फिर क्या करते हैं, कुछ ATP बनाते भी हैं, ठीक। मेन चीज, 1 molecule of glucose forms 2 molecule of pyruvate। एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं ग्लूकोज का, कितना, एक मॉलिक्यूल। 6 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6 है। C6 है तो 6 कार्बन कंपाउंड रहते हैं, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तभी ना, ये तो 3 कार्बन कंपाउंड रहता है पायरुविक एसिड, तो इसीलिए इनटू 2 करते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट, दोनों ही एक ही बात है। वो कब बनेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक। कैसे बनाता है, थ्रू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, दिस मच अंडरस्टूड और नॉट? नो मैम। ओके, कहानी समझ में आया, पूरा ग्लूकोज का प्रोसेस या मतलब पूरा ग्लाइकोलाइसिस अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। 2 वर्ड से बना है, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैसा है,
पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता। कंप्लीट ब्रेकडाउन तो तब होगा जब वो क्रेब्स साइकिल और ईटीएस सिस्टम से पार करेगा। इसमें तो अभी आधा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक। तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन कर रहा है। देन इसमें बोल रहे हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे है। किस चीज के लिए बोल रहे हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे? बिकॉज इट इज अकरिंग इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो। दोनों ही रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होता ही है, ठीक है। चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस होना है। अब जब एनारोबिक प्रोसेस होता है तो एनारोबिक वाले में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होकर रुक जाता है, ठीक है। उससे आगे ना क्रेब्स साइकिल नहीं होता और लिंक रिएक्शन नहीं होता, ईटीएस नहीं होता, वो सब नहीं होता। एनारोबिक प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस होने के बाद दूसरे तरह से वो लोग एटीपी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगा। देन इसका जगह क्या है, ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? तो इट अकर्स इन साइटोसोल और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो सेलुलर पूल है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक। अब ये डिस्क्राइब कौन किए थे? 3 साइंटिस्ट किए थे, इम्बेडेड, मेयरहोफ एंड परनास। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ईएमपी पाथवे, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, तीनों के फर्स्ट लेटर से लेके ईएमपी पाथवे का नाम दे दिया गया। अब ये एटीपी बनता कहाँ से है? फोटोसिंथेसिस, खाना बना रहा है, खाना का इस्तेमाल एटीपी बनाने में किया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस खाना बना के स्टोर किस फॉर्म में कर रहा है? सुक्रोज के फॉर्म में करता है या तो स्टार्च के फॉर्म में करता है, यही दो के फॉर्म में स्टोर करता है। तो चाहे स्टार्च हो चाहे सुक्रोज, जब ब्रेक डाउन करेंगे तो सुक्रोज से 2 प्रोडक्ट निकलता है, एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज। स्टार्च से सिर्फ ग्लूकोज निकलता है। तो चाहे फ्रक्टोज चाहे ग्लूकोज कहीं से भी टूट के वो लोग ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर सकते हैं, ठीक। ग्लाइकोलिसिस में अगर सिर्फ ग्लूकोज इंटर कर रहा है तो वो 10 स्टेप प्रोसेस होगा, लेकिन अगर फ्रक्टोज इंटर कर रहा है तो वो 9 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होकर फ्रक्टोज में आता है, ठीक है। तो वो एक स्टेप कम हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। अब ग्लाइकोलिसिस से मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना ये 10 स्टेप में होता है, मतलब इट विल रिक्वायर 10 स्टेप प्रोसेस। देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। 2 फेज में डिवाइड किए हैं इस 10 स्टेप प्रोसेस को, ठीक है। एक प्रिपरेटरी फेज कहलाता है, दूसरा पे ऑफ फेज कहलाता है। प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा? सेल विल इंटरैक्ट देमसेल्फ, दे विल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज, यानी कि पे ऑफ फेज के लिए प्रिपेयर करेंगे। और इस प्रिपरेशन में दे यूटिलाइज सम एनर्जी, यानी कि कुछ एटीपी इस्तेमाल करते हैं। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी बनाने का काम तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ एटीपी यूज करते हैं, इसलिए उसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। फिर पे ऑफ फेज में वो जो इस्तेमाल किया था एटीपी, उसको ये लोग वापस में दे देते हैं, यानी कि वापस से एटीपी बनता है, ठीक। अब ये मेन लाइन है कि ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बन रहा है। सिंस वी ऑल नो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, C6H12O6 लिखते हैं हम लोग, तो कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन कंपाउंड से हम लोग पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक। तो जब ये 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो कैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 3 ही कार्बन कैसे रिलीज हो सकता है? तब इसको 2 बार बनना होगा, तभी तो ये 6 बराबर आएगा। तब क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है, इसीलिए इसको क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना, ये बताया जाता है। कैसे? टू कंप्लीट द 6 कार्बन कंपाउंड का नीड। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ 3 ही कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड पाने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड वो लोग बनाते हैं। ओके, नाउ एनी डाउट? No, ma'am. ओके, अब आते हैं दूसरे पेज में। पहले यहाँ साइकिल देख लेते हैं, बिकॉज वी हैवंट सीन द साइकिल, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ और राइट। इस साइड से देखते हैं। ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बना हुआ है, रखा है, किसके जरिए? प्लांट ने बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। नाउ ग्लूकोज देखो पहले स्टेप में क्या कर रहा है? एटीपी को यूज कर रहा है। एटीपी को यूज करके क्या बना रहे हैं? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज बन किस में रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयन। यू हैव टू रिमेम्बर द एंजाइम आल्सो, ठीक है। देन अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पे देखो फिर एटीपी यूज कर रहा है, और फिर एटीपी यूज करके ये एडीपी बना रहे हैं, ये हो गया। अब ये एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्ट करेगा और क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ओके, देन अब देखो इसके पास 2 तरीका होता है, ये 2 तरीके में टूटता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब इसमें भी टूटता है, इसमें भी टूटता है, दोनों तरह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक। दोनों तरह से ब्रेक डाउन होगा तभी तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं तो एक ही मॉलिक्यूल बनता पायरुविक एसिड का। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, इट फॉर्म्स व्हाट? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
अब गिल्सरल्डिहाइड वाला अपना काम करता है, यहाँ पे ये एक रिएक्शन और करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ये भी अपने आप को वापस से इसी में कन्वर्ट करता है। पहले तो एक तरीका यहाँ से बन रहा है पायरुविक, एक पायरुविक एसिड इस वाले से पूरे बनेगा, दूसरा पायरुविक एसिड इस वाले से आता है, ये वाला वापस से इसमें कन्वर्ट होता है गिल्सरल्डिहाइड, फिर वहां से दूसरे पायरुविक एसिड का स्टार्ट शुरू होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड ऐसे बन रहा है। ठीक, यहाँ तक अभी क्या था, दिस होल फेज, ये वाला पूरा फेज, ये क्या है, प्रिपरेटरी वन, प्रिपरेटरी वन, यहाँ पे एटीपी यूज करके ये लोग अपना काम कर रहे थे। अब गिल्सरल्डिहाइड 3 phosphate, it will use the nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NAD यूज करेंगे in the presence of enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase. You have to learn the name also. Okay, I will tell the trick how to learn the product. Then अब देखो ये जो बना है ना, इससे भी एटीपी रिलीज होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में। देन ये क्या बनाएगा, 1,3 दिस फॉस्फोगिल्सरेट, फिर यहाँ पे एटीपी से एटीपी बन रहा है, देखो एक यहाँ आधा एटीपी बनेगा, यहाँ पे एक पूरा एटीपी बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज। क्या बना रहे हैं, 3 फॉस्फोगिल्सरेट, फिर 3 फॉस्फोगिल्सरेट से 2 फॉस्फोगिल्सरेट, 2 फॉस्फोगिल्सरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पीईपी, फिर यहाँ पे पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट कैसे बन रहा है, एक तो डायरेक्ट इससे बनेगा, दूसरा ये वाला देगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो था वो 2 पार्ट में टूटा, और फिर जो दूसरा वाला पार्ट था वो डायरेक्टली केस में कन्वर्ट हो गया, पहले वाले पार्ट में रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हुआ, और फिर वो तो अपना जो दे ही रहा था उसके अलावा एक और देगा, तो इस वजह से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाते हैं या बन जाते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम एंड एंजाइम नेम्स। सो अ ट्रिक how you can remember or how you can easily learn this one, I have written and made a trick at the last, I think. Yeah, see, for the glycolysis, first letter, good girls fill full glass daily by 3 pg 2 pg and play ping pong. So first letter हर चीज का डिनोट कर रहा है कि क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन गिल्सरल्डिहाइड, देन डिहाइड्रोक्सी समथिंग वाज देयर, आई जस्ट I'm not able to recall. Then यहाँ पे bis phosphate, then 3 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid, then phosphoenol pyruvic acid and then pyruvic acid. So this is the trick जिससे तुम याद कर सकती हो glycolysis का product. Enzyme anyhow you have to still remember. If you want, I can make the mnemonics of enzyme also. So I will share the slide also. I have made the mnemonics of each cycle. So this one is for glycolysis. How you will remember? Good girls fill full glass daily by 3 pg 2 pg and play ping pong. Every initial will denote the products which are formed in the glycolysis process. हर process का initial से ही, so it will not create any hindrance in learning. Yeah, see, glucose, glucose 6 phosphate, fructose, good girl fill full, then glass, dehydroxyacetone phosphate था ये, daily by 3 pg 2 pg and then play ping pong and play ping pong. तो ये पूरा first initial letter will denote the product which are forming in the glycolysis. Any doubt? What are we doing in the glycolysis? Any doubt? See, you have to learn glycolysis step and the enzyme. There is no other way. So better to learn by the mnemonics only. Yes, Hannah, are you there? Any doubt? I'm fructose का एक बार फिर से बता दीजिए, fructose 1,6 Bisphosphate. yes ma'am. Okay. So फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्या काम है, देखो वो एल्डोलेज एंजाइम प्रेजेंस में जब टूटता है ना, तो वो 2 पार्ट में टूटता है, एक गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है और एक डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को बनाता है, ये 2 चीज बनाता है। अभी तक तो क्या हो रहा था, ये यूज करके एक ही चीज बना रहे थे, ये 2 चीज बनाता है, ठीक। अब जब एक चीज बनाया है गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो वो गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक पायरुवेट बनाएगा, मतलब वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, 1,3 बिसफॉस्फेट बनाएगा, देन 3 फॉस्फोगिल्सरल्डिहाइड बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ठीक है। फिर जब ये गिल्सरल्डिहाइड वाला अपना काम करता रहता है, तो एट द सेम टाइम इसका क्या काम है, ये वाले का, ये वाला जो है हमारा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये खाली थोड़ी बैठा रहता है, इसको भी चिल मची रहती है कि हम भी कुछ करें, तो ये भी क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ये इसी का तो आइसोमर है। आइसोमर क्या करते हैं, आइसोमर चाह के अगर वो चाहें तो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं ना, तो आइसोमर जब इसी चीज का आइसोमर ये है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, डिफरेंट है उनके स्ट्रक्चर में, तो ये क्या करता है अपने आप को कन्वर्ट करता रहता है, और किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट कर लेता है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होके कहाँ बना लेता है, यही गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लेता है। और जब ही गिल्सरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, तो इसका काम क्या है, जी वाले का, G3 फॉस्फेट का,
इसका काम तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने का है, यानी कि जैसे ही ग्लिसरेडिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है वो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनना शुरू हो जाता है। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फॉस्फोइनोल बनेगा, देन पायरुवेट बनेगा। तो दोनों का काम बेसिकली क्या है, एक मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट बन रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आइसोमेरेज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बन रहा है। नाउ एनी डाउट? Okay, main thing is to remember the product. Then if you want, I will make the mnemonics of this enzyme also, because product and enzyme दोनों ही याद रखना important होता है for the whole process of glycolysis. Okay, then I will not go through these steps. These steps are useful for writing in exams if it has been asked. And then you have to write each and step. It depends upon you कि whether you will write the reaction in each step or not, क्योंकि मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा आंसर बच्चे लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो डोंट राइट दिस मिडिल रिएक्शंस, यू जस्ट राइट द होल 10 स्टेप प्रोसेस एंड हर स्टेप में क्या क्या होता है वो लिख सकती हो, बट डायरेक्ट एंड में तुम डायग्राम बना सकती हो। अगर 10 मार्क्स का पूछा है देन यू कैन राइट ईच रिएक्शन इन ईच स्टेप। ओके, एंड देन मेटाबॉलिक फेट ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस दोनों में हो रहा था, एरोबिक में भी एनारोबिक में। तो एनारोबिक में क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ये एनारोबिक का बात हो रहा है, एनारोबिक। ग्लाइकोलिसिस के बाद वो फर्मेंटेशन शुरू कर देते हैं, वो लोग अपना अलग कहानी चालू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो पायरुविक एसिड बना है एरोबिक वाले में या एनारोबिक वाले में, दोनों को देखते हैं कैसे। देखो दोनों ही फेट ऑफ पायरुविक एसिड जो बना है उसका क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि सेल को कितनी जरूरत है और ऑक्सीजन है या नहीं। सेल को जरूरत होगा तभी तो पायरुविक एसिड टूट के एनर्जी बनाएगा, सेल को एनर्जी का जरूरत नहीं हुआ तो वो जबरदस्ती थोड़ी टूटेगा, ठीक। दूसरा, इफ देयर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो वो पायरुवेट दूसरे तरह से टूट के दूसरा कुछ देगा, एब्सेंस ऑक्सीजन का वो तो दूसरा तरीके से काम करेगा, ठीक। तो जैसे ही ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया, तो पायरुविक एसिड का 2 कंडीशन बन गया, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करे, दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करे। तो ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला काम है, ये लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में जाते हैं। हमको इससे नहीं मतलब है, वी डोंट रिक्वायर दिस वन, हम लोग को इससे मतलब है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं एरोबिक वन, वो कहाँ जाएगा, या तो लिंक रिएक्शन में जाएगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जाएगा। मतलब कि जो पायरुविक एसिड बना एरोबिक रेस्पिरेशन में वो लिंक रिएक्शन को फॉर्म करेगा और टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों उसी का ही नाम है, वो परफॉर्म करेगा। तो पहले तो लिंक रिएक्शन में जाएगा, कुछ चीजें वहां पे भी बनानी है उसको, क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले कुछ चीजें बनानी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। फिर जब लिंक रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल वाला प्रोडक्ट बन जाता है तब हम लोग कहाँ डालते हैं उसको, क्रेब्स साइकिल में, यानी कि क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है वो प्रोडक्ट। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये पूरा लिंक रिएक्शन है, इतना बड़ा, बस इसे को हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन ही है। ये लिंक रिएक्शन में बेसिकली पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड में बनना चाहता है, और इसको 2 कार्बन कंपाउंड बनने के लिए क्या चाहिए, एक तो कार्बन को रिमूव करना है। तो जब कार्बन का रिमूवल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन का रिमूवल जब भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ या CO2 के फॉर्म में होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो लोग कार्बोक्सिलेशन करते हैं। देन पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, तब वो क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब देखो यहाँ कोएंजाइम ए लगा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कोएंजाइम ए ऐड हुआ होगा। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में एडिशन हुआ है, किसका, कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जब बन रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन आ रहा है और रिक्वायरमेंट भी हो रहा है एंजाइम का। तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है। उसके साथ साथ NAD+ की प्रेजेंस, यानी कि कुछ तो यूज करके ये लोग कन्वर्ट होंगे, बिना किसी यूज किए तो कन्वर्ट होंगे नहीं। तो NAD+ का रिडक्शन होगा, जिसे ये लोग NADH2 में बनाएंगे, तब जाके ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। इनका मेन मकसद क्या रहता है, 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड में आना, ठीक। यहाँ पे कोई ATP फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता है, सिर्फ ये NAD से NADH बनेगा, ठीक है। एक ही आधा ही ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो लिंक रिएक्शन नो SLP, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन कहीं नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे सेम वही चीज दिखा है, एक पायरुविक एसिड की बात हो रही है, यहाँ पे पूरी तरह से एक पायरुविक एसिड का बात हुआ है। तो एक पायरुविक एसिड में जब होगा तो एक पायरुविक एसिड क्या कर रहा है, एक बार डी कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, एक बार डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, और एक NADH बन रहा है। जब एक पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन या एक पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन बना कितना था पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल,
तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होगा तब क्या होगा, 2 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन होगा, 2 टाइम डिहाइड्रोजनेशन होगा और 2 NADH बनेगा। अंडरस्टूड दिस मच? दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इन डी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड काम करेगा तो 2 टर्न होगा लिंक रिएक्शन का, एक बार नहीं चलेगा लिंक रिएक्शन, 2 बार चलेगा। और जब 2 बार चलेगा तो 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा, 2 बार डिहाइड्रोजनेशन भी होगा और 2 बार NADH का फॉर्मेशन भी होगा। एनी डाउट? अच्छा, गुड, बिकॉज दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, एज दिस फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A which is substrate for Krebs cycle, therefore it is called as link reaction। अकर्स कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिंक रिएक्शन कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। और इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल में चाहिए सबस्ट्रेट, वो बन कहाँ से रहा है, क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट से बन रहा है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एक एक बार ये टर्न चलाएगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है इसलिए 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन चलेगा और 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा, 2 बार डिहाइड्रोजनेशन होगा और 2 बार NADH बनेगा। ओके, नाउ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का 3 नाम है, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसको 3 नाम से क्यों जाना जाता है, डिस्कवर्ड बाय या एक्सप्लेन्ड बाय क्रेब्स हैंस क्रेब्स साइंटिस्ट हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ सेल पिजन में उन्होंने डिस्कवरी की थी, उन्होंने बताया था, इसलिए इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल, इंटरमीडिएट में इसके 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड आता है, ठीक है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो रहता है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ओके, अब क्रेब्स साइकिल में देखो, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो एसिटाइल कोएंजाइम A में बना। यहाँ बीच का मैं नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन। बनाता क्या क्या है अब देखो, यहाँ पे कोएंजाइम A था, बट यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड में कोएंजाइम A है नहीं है, तो यहाँ पे कोएंजाइम A का रिमूवल हो रहा है। फिर ये एसिड बना रहा है और यहाँ पे क्या है, एसिड नहीं है, यहाँ पे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, सिट्रेस सिंथेटेज एंजाइम लगेगा और यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा जिससे ये एसिड बनेगा, यानी कि OH ऐड हो रहा है। ओके, तो सिट्रिक एसिड बना। अब सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, और जो वाटर ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा, सिस एकोनिटिक एसिड। वो भी अभी तक देखो 6 कार्बन कंपाउंड ही चल रहा है, यहाँ 2 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड आ गया क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन चला। फिर आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, और यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बीच में क्या बन रहा है, NADH2 बन रहा है, NAD प्लस यूज हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करके क्या बना रहे हैं, NADH2। ठीक, पहली फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली ATP बन रहा है। ठीक, दूसरा में अल्फा, ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड अब किस में जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बन रहा है। और जब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बना तो क्या करके बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करके बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से कहाँ बना, सक्सेनाइल कोएंजाइम A। देखो फिर से कोएंजाइम A यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो जहां जहां एडिशन हो रहा है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरो से शो कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिमूव हो रहा है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है इसलिए डिहाइड्रोजिनेज। इसका कहाँ से कहाँ बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। एंजाइम भी देखो कैसे कैसे नाम है, इसके रिएक्टेंट पे ही इसका नाम पड़ा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट देन डिहाइड्रोजिनेज। कार्बन निकल रहा है इसलिए डिहाइड्रोजिनेज, और पूरे इसके नाम के आगे 8 लग गया है तो वो एंजाइम बना। ठीक, अब सक्सेनाइल कोएंजाइम A से कीटो, इससे अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम A से दूसरा देखो ATP फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिड्यूस होके NADH2 बना रहा है। फिर सक्सेनाइल कोएंजाइम A से सक्सेनिक एसिड आने में देखो डायरेक्ट ATP बन रहा है, SLP हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। किस प्रोसेस में हो रहा है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A से सक्सेनिक एसिड बनने में। ठीक, एंजाइम कौन सा लग रहा है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A काइनेज। अब सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, यहाँ पे भी देखो FAD का यूज करके FADH2 बन रहा है, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली ATP बन रहा है। Then fumaric acid will convert into malic acid in the presence of enzyme fumarase. Then malic acid will convert into oxaloacetic acid, और यहाँ पे भी
लास्ट वाला एटीपी इनडायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, ठीक, ये लास्ट वाला एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। फिर अगेन ये ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाए किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये सर्कल पूरा कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक, अंडरस्टूड, ये साइकिल कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है। Yes, ma'am. ओके, इसको याद कैसे करेंगे, एंजाइम्स का तो मैं नहीं बता सकती, बट इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, दो ट्रिक है, तुम कोई भी याद कर सकती हो। मेरा ये वाला था विच आई हैव लर्न, ये बहुत सिंपल मुझे लगता है। देखो क्या क्या है, CCI फिर डैश O अल्फा देन SSFMO, क्या क्या है, C से सिट्रिक एसिड, देन सिसअकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर क्या कि एरो कहाँ कहाँ निकालना है, एक आई के बाद ये डैश इसीलिए क्रिएट किया गया है कि एरो बना चाहिए, कि जहां जहां डैश है मतलब कि वहां वहां एरो निकालना है, ठीक। तो NADH एक बार यहाँ निकला, फिर यहाँ के बीच में निकालो, और ये FMO के बीच में। अब बचा क्या, ATP डायरेक्ट कहाँ बन रहा है, दो S के बीच में ATP, और FADH2 वाला S और F के बीच में। तो in my times I have learned this one, you can learn from this one also. Can Cooper ice skate or alpha has some super fantastic names on, again first initial will denote the product which are formed in Krebs cycle, okay। देखो can Cooper, citric acid, then isocitrate, citric acid, then cisaquanitic acid, isocitrate, oxaloacetic acid, alpha ketoglutaric acid, succinyl coenzyme A, then succinic acid, fumaric acid, malic acid, and then oxaloacetic acid। तो ऐसे ही तुम याद कर सकती हो, ओके। These are all the tricks। ये किसके लिए है, Krebs cycle के लिए है, ये वाला भी Krebs cycle के लिए है। Whatever suits you best, you can learn from it। ETA का कोई सिस्टम नहीं होता, you just have to understand। ETA easy भी होता है, and then TCA cycle। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एक टर्न ऑफ Krebs cycle देगा, लेकिन बना कितना था, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, तो टोटल टर्न कितना होगा Krebs cycle का, 2 टर्न। अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में कैसे कैसे होगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एक टर्न Krebs cycle का देगा, और उस एक टर्न में क्या क्या हो रहा है, 3 बार NADH यूज हो रहा है, मतलब 3 बार NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बार FADH का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक बार ATP बन रहा है, यानी 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। देखो NADH और FADH का क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजिनेशन ही तो हो रहा था, जिससे ये NADH2 या FADH2 बन रहा है। ये क्या है, SLP हो रहा है, मतलब यहाँ लिखा दिया मैंने 1 SLP, देन 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन, 2 बार CO2 बाहर गया था, इसलिए क्या है, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर यही चीज 2 बार हो रहा है, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए करेगा तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। जस्ट वेट हियर। सो पायरुविक एसिड, NAD+ या FAD+, ADP या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या बना रहे हैं, ये होल रिएक्शन है Krebs cycle का ऑल टुगेदर, ठीक है। ये Krebs cycle को ऐसे शॉर्ट में दिखा सकते हैं कि ये होल रिएक्शन है, ठीक है। कैसे, पायरुविक एसिड यूज करके, ये सारे चीज यूज करके क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर वहां से ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, NADH की पूरा रिएक्शन है कि कितने कितने कहाँ कहाँ क्या बनेगा। अंडरस्टूड दिस मच, यस, अंडरस्टूड और नॉट। ये मैंने एक बारी का बताया है, लेकिन हमारा Krebs cycle 2 बारी चलता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस Krebs cycle? Yes, ma'am. Then we will move ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया या बनाया, आई डोंट रिमेम्बर, ओके या बनाया है। सो ETS चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, NADH या FADH2 ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे ना PS1 और PS2 में, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन को जंप कराते थे एक दूसरे को, कैचिंग द बॉल वाला गेम, तो यहाँ पे भी वही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो NADH या FADH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो वो इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ पे है, अलग अलग चैनल्स के थ्रू, या अलग अलग लोग उसको पकड़ते हैं। ऐसे समझ लो कि वो लोग रहते हैं, चैनल्स नहीं, लोग, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को लोग समझ लो, और वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बॉल को कैच करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। ऑक्सीडाइज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड देन फ्लो थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कई तरह से होते हैं, ठीक है। इसमें भी आएंगे B3 कॉम्प्लेक्स, B कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल, कैसे अरेंज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, रेडॉक्स पोटेंशियल इंक्रीजिंग में, यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाते हैं। देन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखो कौन कौन से हैं, FMN, FES, साइटोक्रोम्स, FMN यानी फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन
मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये सारे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर ईटीएस में काम करते हैं। साइटोक्रोम्स, देन यूबिक्विनॉन। साइटोक्रोम में कौन कौन सा साइटोक्रोम? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सिंपल साइटोक्रोम है नहीं, यहाँ ए रहेगा, सिंपल नहीं रहेगा, A3। ठीक, साइटोक्रोम बी, देन C1, देन सी, देन A3। इतने सारे साइटोक्रोम हैं। यूबिक्विनॉन हम लोग इसको डायरेक्ट यूक्यू से डिनोट करते हैं, एंड कोएंजाइम को कोएंजाइम ऑफ क्यू, COQ। ठीक, कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं? ये क्या थे? कैरियर्स थे। अब कैरियर्स जो होते हैं ना, उनका अलग अलग घर समझ लो, एक घर की तरह होता है, अलग अलग डिब्बे में पैक रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स रहेगा। हर 4 कॉम्प्लेक्स या 5 कॉम्प्लेक्स में अलग अलग 4 मेन होते हैं, दूसरे वाले को तो आधा कॉम्प्लेक्स मानते हैं, आधा नहीं मानते, वो बताएंगे अभी। तो 5 कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि 5 घर हैं। इन्हीं पांचों घर में कैरियर्स रहते हैं। ठीक, कोई इस घर में रहता है, कोई उस घर में रहता है, तो कौन सा किस कहाँ रहता है? देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन सा रहेगा? FMN और FES रहते हैं, ये दोनों कैरियर। कॉम्प्लेक्स सेकंड में FES रहता है सिर्फ। देन कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी रहता है, साइटोक्रोम सी एंड FES रहता है, यानी कि FES सेकंड वाले में भी है, थर्ड वाले में भी है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कौन कौन सा रहेगा? साइटोक्रोम A3 रहेगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम A3 एंड देखो कॉपर एटम्स, 2 कॉपर एटम्स भी रहते हैं, यानी कि एडिशनल कुछ लोग भी रहते हैं गेस्ट की तरह। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में क्या है? F0 F1 सिस्टम है, जहां से ATP बन के आ रहा है। क्योंकि ATP बनता कैसे है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो वहीं पे जाके तो जमा होगा, फिर जो उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ATP बनाएगा। तो लास्ट प्रोसेस में ATP बन रहा है। ठीक है, इतना क्रेब्स साइकिल हुआ, इतना ग्लाइकोलिसिस हुआ, बना कहाँ? ETS में। कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। तो शुरुआत कहाँ से होगी? देखो, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिए हैं? ये मैट्रिक्स से बाहर का है, ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये अंदर का बात हो रहा है, ये बाहर का। तो ये बीच का जो पाथवे है मैट्रिक्स और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या है? कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस यानी कि पर्टिकुलर घर, एक किसी का घर है, ये किसी का घर है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सेकेंड्स आधा मैट्रिक्स में है और आधा IMS में है। ठीक, तो इसीलिए इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नहीं मानते, क्योंकि ये आधा आधा लटका हुआ है, आधा इधर आधा उधर। ठीक है, तो इसी आधे में भी देखो अभी एनर्जी बनती भी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मैट्रिक्स में देखो, क्रेब्स साइकिल जब हो रहा है तो वो NAD+ से NADH2 बना रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ऑक्सीडेशन करके। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? जंप आउट करेगा। जंप आउट जब करेगा तो इसको कैच कौन करेगा? FMN कैच करेगा, फिर ये पहुंचाएगा किसको? FES को। फिर यहाँ देखो, इन सब का पोजीशन देखो फिक्स्ड है, लेकिन कुछ कुछ चीजें क्या है? पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि यूबिक्विनॉन, इसका पूरा स्पेस खाली है, ये अपने आप कहीं भी घुमा सकता है। देखो, आगे पीछे ऊपर नीचे यूबिक्विनॉन कर सकता है। ठीक है, और बाकी सबको तो पोजीशन फिक्स है, ये लोग अपने अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन यूबिक्विनॉन फिक्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये इससे तो इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है। ये जो FES वाला है, ये FES का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? जो मैट्रिक्स में FADH वाला सिस्टम भी तो मैट्रिक्स में हुआ है, FADH से भी FAD+ से भी तो FADH2 बना है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कौन कैरी कर लेता है? FES। और यूबिक्विनॉन का काम क्या है? दोनों FES के सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पहुंचाना? साइटोक्रोम B के पास पहुंचाना। फिर साइटोक्रोम B से क्या आएगा? वो वापस से FES को देगा, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, फिर वो क्या करेगा? साइटोक्रोम C को पहुंचाएगा। अब देखो, साइटोक्रोम C भी क्या कर रहा है? लटका हुआ है, घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है, इन लोग को काम करना है, ये आगे पीछे करना है, इसलिए ये लोग घूमते रहते हैं। यूबिक्विनॉन और साइटोक्रोम C, ये लोग कैरी करेंगे साइटोक्रोम C1 से, किसको पहुंचाएंगे? कॉपर एटम जो भी वहां बैठा था, CuA, कहाँ बैठा था? कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। फिर वो पहुंचाएगा साइटोक्रोम A के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास, फिर कॉपर एटम B। अभी हमने पढ़ा ना, 2 कॉपर एटम थे, एक कॉपर एटम A ऊपर की तरफ था, गार्डिंग कर रहा था, दूसरा नीचे की तरफ है, ये गार्ड कर रहा है। दोनों लोग पेरेंट की तरफ अपने बच्चों को घर में दबाए हुए हैं, मतलब साइटोक्रोम A और A3 बीच में दबा है, किसके? कॉपर एटम A और कॉपर एटम B के बीच में। ठीक, फिर जब कॉपर एटम B के पास आता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां से क्या होगा? वाटर या ऑक्सीजन। देखो, हाफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और वहां से क्या बनता है? H2O, यानी कि वहां पे पानी बन गया। अब देखो, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जितना भी हो रहा है, बार बार मैट्रिक्स से कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखो बढ़ता चला जा रहा है हर जगह। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करके वाटर बना लिया, लेकिन जो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा था इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, वो तो अंदर की तरफ जमा होता चला जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। मैंने बताया था ना बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में भी कि जहां जहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब मैट्रिक्स में क्या है?
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे क्या है ज्यादा है। तो इस पूरे हाइड्रोजन को क्या करा जाएगा, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं F0 और F1 वो गेट की तरह काम करेंगे। ये F0 क्या है, इम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, ताकि जो हाइड्रोजन अंदर है घुसे हुए वो बाहर निकले, बराबर करें, ठीक है। तो ये F0 हाइड्रोजन को F1 F0 चैनल के थ्रू क्या करेगा, बाहर भेजेगा। अगर बाहर भेजेगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हाइड्रोजन का यूज करके क्या बनेगा, एटीपी, एंड यहाँ पे एटीपी फाइनली फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो जब ये हो रहा है, यानी कि एक NADH2 जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो कितना हाइड्रोजन दे रहा है, 6 हाइड्रोजन पम्प्ड आउट होते हैं। मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेसेस, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ कितने हाइड्रोजन जाते हैं, 6 हाइड्रोजन। कब, जब एक NADH2 टूटता है या रिडक्शन होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब एक FADH2 टूटता है तो 4 हाइड्रोजन जाता है, 4 हाइड्रोजन अंदर जाते हैं। 4 हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमैट्रिकुलर स्पेसेस। तो अब यहाँ पे देखो, 2 हाइड्रोजन एक बार गया, फिर 2 हाइड्रोजन एक बार गया, फिर 2 हाइड्रोजन एक बार गया, यानी कि एटीपी 2 हाइड्रोजन एक एटीपी बना रहा है। तो एक NADH2 से टोटल कितना एटीपी बन रहा है, 3, इनडायरेक्टली बन रहा है, ठीक है। एक NADH2 से 3 एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, एक FADH2 से 2 एटीपी का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक। तो पूरा एटीपी 5 यहाँ पे बनने की तैयारी है। ये ओवरऑल बताया जा रहा है कि एक NADH2 या एक FADH2 से कितना एटीपी बनता है। तो एक NADH2 से 3 एटीपी बनता है, एक FADH2 से 2 एटीपी बनता है। हालांकि ये कम्प्लीटली सही नहीं है, बिकॉज एक NADH2 से रीसेंट जो डिस्कवरी हुई है उसके अकॉर्डिंग 3.5 एटीपी बनता है और FADH2 1.2। तो ये NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, और NCERT कह रहा है कि एक NADH2 से 3 एटीपी बनता है, तो हम लोग भी वही पढ़ते हैं, ठीक। कीमोस ऑस्मोसिस सब होगा। एटीपी कैसे बन रहा है, वही सेम अभी इस कॉम्प्लेक्स का बात बता रहे हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बन रहा है, TMF यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो क्रिएट हो रहा है, प्रोटोन मोटिव फोर्स। प्रोटोन मोटिव फोर्स मतलब कि जो H+ आयन प्रोटोन ही तो होता है, वो उसका फोर्स क्रिएट हो जाता है इनसाइड की तरफ, और वो जब इनसाइड में ज्यादा हो जाता है तो F0 F1 चैनल के थ्रू बाहर की आने की कोशिश करता है, यानी मैट्रिक्स में बनता है, और इसी से क्या होता है, ग्रेडियंट को ब्रेक करता है, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस, और इसी के थ्रू पूरा एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। देखो यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वही सेम चीज कहा है कि 2 हाइड्रोजन देखो यहाँ पे आ रहे हैं F0 F1 चैनल के थ्रू, और ये यूज करके एटीपी बनाएगा। ये लास्ट कॉम्प्लेक्स का बात है इस डायग्राम में। ये बैलेंस शीट देख लो, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल होता है, एक मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है। देखो कुछ बुक में यू विल फाइंड 36 एटीपी बनता है, कुछ बुक में यू विल फाइंड 38 एटीपी बनता है। टोटल एनर्जी ये फॉर्मेशन का बात हो रहा है। तो ये 2 तरह से शटल भी होते हैं। ये शटल वटल हम लोग को डिटेल में तो नहीं जाना, बट अगर 38 एटीपी बना है तो फॉर श्योर ये मेलेट एस्पार्टेट शटल को यूज करके बना है, और अगर 36 एटीपी बना है तो ये ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल को यूज करके बना है। तो क्वेश्चन दोनों ही तरह से आ चुके हैं कि कितना एटीपी कहाँ पे बना है या किस थ्रू बना है, ठीक है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एडेड बोथ द बैलेंस शीट, थ्रू दिस शटल आल्सो, थ्रू दिस शटल आल्सो। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में पहले ही देख लो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक NADH 3 एटीपी बनाता है, एक FADH 2 एटीपी बनाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। ग्लाइकोलिसिस का पूरा 1 टर्न लगता है, और 1 टर्न में कितना एटीपी बना रहे हो, 2 एटीपी बनाता है, और 2 NADH भी तो बनाता है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस अभी खोल के देखोगी तो उसमें 2 बार NADH बना होगा और 2 एटीपी बना होगा SLP के थ्रू। तो 2 एटीपी यहाँ से और 2 NADH मतलब कि 3 एटीपी, तो 6 एटीपी। टोटल कितना एटीपी बना रहा है ग्लाइकोलिसिस, 8 एटीपी। लिंक रिएक्शन 2 टर्न हो रहा है लेकिन कोई एटीपी नहीं बनाता, ये डायरेक्ट SLP के थ्रू तो कुछ नहीं बनाता, लेकिन 2 बार NADH तो यूज हुआ है ना, मतलब 6 एटीपी तो बना है। अभी अपने लिंक रिएक्शन खोल के देखोगी तो सारा रिएक्शन में ये बना हुआ होता है। तो 6 एटीपी लिंक रिएक्शन से बनता है। देन क्रेब्स साइकिल 2 टर्न्स लेता है। 2 टर्न ये दोनों क्यों लेते हैं, क्योंकि एक ग्लाइकोलिसिस का मॉलिक्यूल 2 बार पायरुविक एसिड देता है, फिर 2 पायरुविक एसिड से 2 लिंक रिएक्शन होता है, 2 लिंक रिएक्शन पे 2 बार क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटीपी थ्रू SLP ये 2 एटीपी देते हैं। यहाँ पे देखो NADH भी चलता है, FADH2 भी चलता है। तो NADH2 3 बार चला तो इसका क्या हुआ, 6 बार NADH बना था, तो 6 into 3 18 एटीपी यहाँ से, और 2 बार FADH2 बना है 4 एटीपी यहाँ से। टोटल कितना 24 एटीपी। और जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना एटीपी फॉर्म हो रहा है, 38 एटीपी, यानी कि
पूरा नेट गेन जो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है वो 38 एटीपी का बनता है, या तो 36 एटीपी। 38 कब बनेगा? जब मेलेट अस्पार्टेट शटल चलेगा, और ज्यादातर की यही शटल चलता है, ठीक। और 36 एटीपी कब बनेगा? जब ग्लूकोज फॉस्फेट शटल चलेगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन मोनो। डिपेंड्स ऑन द शटल यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, डिपेंड करता है जो शटल यूज हुआ होगा उस हिसाब से एटीपी भी बनेगा। मेलेज अस्पार्टेट शटल यूज होता है तो 38 एटीपी बनता है, और अगर ग्लाइसोरोल 3 फॉस्फेट शटल यूज हुआ है तो 36 एटीपी बनता है, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? हम क्रेब्स साइकिल में हाँ, टोटल एटीपी 22 होगा ना? 22 तब होगा जब ये मैंने बताया ना, ये जब ये शटल चलेगा उसमें ही गड़बड़ होता है, क्योंकि FADH2 में वहां कमी हो जाती है, ठीक है। ये शीट देखो यहाँ पे ये वाले में, क्रेब साइकिल वाले में ही कंफ्यूजन आएगा। 6 ATP यहाँ पे 36 ATP। अच्छे जा रहे हैं। क्रेब साइकिल FADH2 NADH2 किस वाले में है? सिट्रिक एसिड साइकिल 20। नहीं बेटा, ये आपने कहाँ से देख लिया कि बनता है? मेरे वाले उसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे। क्रेब साइकिल का 24 ही आएगा, वो यहाँ चेंज हो रहा है 8 और 6 के बीच में। देखो ग्लाइकोलिसिस में चेंज हो रहा है जब नंबर चेंज हो रहा है। तो कहाँ से देखा था आपने? बिकॉज क्रेब साइकिल में 24 एटीपी ही बनना है, उसमें कोई वही नहीं है, वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस के थ्रू कम होता है। आई एम डेड श्योर कि वो 24 एटीपी ही बनेगा। ग्लाइकोलिसिस में कम होगा, उसका शटल दूसरा है, ठीक है। शटल की वजह से 2 एटीपी का आगे पीछे होता है। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल आल्सो, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस वन, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग ऑन द शटल सिस्टम। शटल सिस्टम इज एनीवे नॉट इन द सिलेबस आल्सो, बट इतना याद रखना कि जब भी मेलेट अस्पार्टेट शटल होगा तो 38 एटीपी बनेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम 38 एटीपी बनता है। और ये ग्लाइसोरेट 3 फॉस्फेट शटल जब चलेगा तो 36 एटीपी बनेगा, लेकिन जो वो 2 एटीपी का आगे पीछे होता है वो ग्लाइकोलिसिस स्टेप में ही होगा। ये क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन में तभी उतना ही बनेगा, ठीक। एनी डाउट नाउ? ओके। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि कितनी एनर्जी देता है ये जो एटीपी बना है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, ओके। तो एक एटीपी के पास कितना कैलोरी पर मोल एनर्जी देने का कैपेसिटी है? 8.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी को दे सकता है, ठीक है। इसी किलो कैलोरी को जूल पर मोल में भी पूछ लेते हैं इन सर्टेन एग्जाम्स, तो कन्वर्जन आना चाहिए। टोटल एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना बन रहा है? 38। एनर्जी कितना मिलेगा? 38 एटीपी इंटू 8.1 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि 307.8 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी बनता है। कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है 38 एटीपी की? 307.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देता है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है? 686 किलो कैलोरी पर मोल। तो एनर्जी एफिशिएंसी कितना निकलता है? 45% ओनली। मतलब कि अगर हम लोग किलो कैलोरी पर मोल की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हम लोग एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज खाएंगे तो उसका 45% ही हम लोग को कितना एनर्जी मिल रहा है। पूरे ग्लूकोज का वो एनर्जी हम लोग को मिलता भी नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है, एनर्जी एफिशिएंसी उसका कितनी है? 45% ही है। क्यों? क्योंकि जो पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है कुछ स्टोर के फॉर्म में रहता है, कुछ जरूरत पड़ने पर होता है, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी 45% है, ठीक। अब इन किलो जूल पर मोल भी करोगी तब भी 45% ही एफिशिएंसी निकलेगा। बस किलो जूल पर मोल में ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि टोटल कितना है? 34 किलो जूल पर मोल। वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे, इतना 1292 किलो जूल, यहाँ पे 2897। ये पूरा इक्वेशन या पूरा चीज ये किलो कैलोरी पर मोल में था, ये किलो जूल पर मोल में था, क्योंकि दोनों ही यूनिट सिस्टम में पूछ सकते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन बोथ द कैलकुलेशन। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट 3 थिंग्स कि एक एटीपी कितना किलो कैलोरी पर मोल देता है, ये कितना जूल पर मोल देता है, और एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है। दोनों की एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ही निकलेगी, 45%, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एनर्जी एफिशिएंसी 45% है, ठीक। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी टॉपिक। ओके, सम थिंग्स आर लेफ्ट। एम्फीबोलिज्म ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब देखो क्रेब साइकिल में ही क्यों एम्फीबोलिज्म बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे है उसमें क्रेब साइकिल में ही कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है। कुछ टूटता है कुछ बनता है, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जहां दोनों होगा तो उसको बोलते हैं एम्फीबोलिज्म, और पाथवे क्या हो जाएगा? एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिक है, क्योंकि टूटता रहता है, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर जो क्रेब साइकिल है उसमें दोनों चीज चल रहा है। दैट इज व्हाई ब्रॉडर टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेशन दोनों है, एम्फीबोलिक पाथवे है, ठीक। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड वर्सेस
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे के ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है या द फॉर्मूला फॉर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज, तो ऐसे घुमा फिरा के 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, प्रोटीन, फैट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स का दिया रहता है, तो बेसिकली ये 4-5 है जो हम लोग को याद करने हैं। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, फैट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 होता है, प्रोटीन्स का भी लेस देन 1 होता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स का ग्रेटर देन 1। तो ये अमाउंट हमको याद रखना है, नंबर। देन ये रिएक्शन पेज। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। डू यू वांट टू गो विद द स्लाइड्स? आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग. In this chapter, I would recommend you to go whatever I have written, because slide mein it is slightly confusing. They are bookish language or somewhere the difficult term language. Okay, so I have written in a most sophisticated and most easy way so as to understand everything. ठीक है, तो whatever I have written, go through that one. और जिसको मैंने underline किया हुआ है या mark किया हुआ है. So by this I think I have completed the chapter.